So we have in the previous class we have covered our programs, right? Now the new topic for today is counter. 3 or 4 topics are left from this chapter, then we will try to cover the question answers also. So the first topic is counter. Count by its name, it suggests what? That counter is used to count something. Counters are mainly used to count something. For example, like if I say in 8th class, how many number of students are there? So I want to count that how many students are there in section A, in section B, or in section C. So when I will count the total number of students, so obviously I need a variable which work as a counter. यानी कि अगर मुझे कुछ काउंट करना है, मुझे ये काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं 8th ए के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंट करने के लिए. सो सपोज काउंट करने के लिए आई एम टेकिंग अ वेरिएबल सी. नाउ दिस सी विल बी ऑफ विच टाइप? इंटीजर टाइप, बिकॉज ऑब्वियसली इंटीजर टेक्स प्योर नंबर्स विदाउट पॉइंट्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 and so on. Means integer can take only the pure numbers, not the numbers with decimal point. हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना, like कि in 8th A class 10.5 students are there. Obviously I will say like 10 students, 20 students, 30 students. So that means we are taking integer type of value C to count something. Okay, now suppose leave this program whatever is given in your book, because this is quite complicated and this part we will study in the 9th class. So I am giving you a very simple example of counters. तो counters जो mainly used होते हैं किसी भी चीज़ को count करने के लिए होते हैं. For example, if I made a program like hash include iostream.h, suppose ये program लेते हैं, suppose this is your program, ठीक है. Now I want to count the total number of students, ठीक है. So यहाँ पर I will write hash include iostream, hash include conio, void main, opening bracket, clr scr. Up to here everything is same, ठीक है. या फिर मुझे चेक करना है to count even numbers from 1 to 10. ये क्वेश्चन है आपका कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो 1 to 10 के बीच में टोटल कितने इवन नंबर्स होते हैं? फर्स्ट इज 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10. 1 to 10 के बीच में टोटल कितने इवन नंबर्स होंगे? 5 नंबर्स. So if I want to count total even numbers from 1 to 10, so how I will make the program? I will write like this: for int num is equal to, कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो 1 से 10 तक जाना है, तो 1 से 10 तक चेक करना है. दैट मीन्स num will start from 1. num is less than equal to 10. 10 तक करना है and then semicolon num plus plus. num plus plus. And because I want to count, so what I will write, यहाँ पे for आएगा. Inside the for loop, I will write if. Now what is the condition for checking even number? Even number की condition क्या होती है? If num modulus 2 is equal 0. यानी कि किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करने पर you are getting remainder as 0, so in that case you will do counter plus plus, c plus plus. और c की वैल्यू क्या होगी? इनिशियली c is equal to 0. So I have taken int c is equal to 0. Okay, now close it. So how it will work? Initially value of num is 1. 1 is less than equal to 10. Condition true. अब 1 को डिवाइड करो 2 से. 1 को 2 से डिवाइड जब करोगे, what you will get as the remainder? Tell me. 1 को 2 से डिवाइड करने पर what will be the remainder? What will be the remainder? Class 8. Do you know how to divide the numbers? Remainder I am asking. When you will divide 1 by 2? 1, correct. 1. So क्या 1 0 के equal है? 1 is equivalent to 0?
नो, दैट मीन्स काउंटर की जो वैल्यू जो हमने लिखा है सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का मतलब सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, एंड व्हाट इज सी, सी इज अ काउंटर एक्चुअली, सी क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है कितने इवन नंबर्स हैं, तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो दैट मीन्स 1 तो इवन नंबर नहीं है, तो इन दैट केस सी की वैल्यू प्लस प्लस नहीं होगी. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गेट, नम विल गेट प्लस प्लस, तो नम की न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, पहली वैल्यू क्या थी नम की 1, देन सेकेंड टाइम जब नम प्लस प्लस होगा सो नम विल बी 2. नाउ वी विल चेक हियर 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या 2 10 से स्मॉलर है, येस ऑफ कोर्स है. देन आई विल मूव ऑन टू इफ पार्ट. अब इफ के अंदर क्या है, 2 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, क्या 2 2 से डिवाइड हो सकता है, yes. Will you get the remainder 0? Yes. So if this condition, if condition is satisfied, so C plus plus. तो C plus plus, C की वैल्यू कितनी थी आपकी अभी 0, तो C plus plus होके कितना हो जाएगा 1, यानी कि I got 1 even number. Fine. Next time when again num plus plus will be there, तो num की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 3, तो 3 लेस देन है 10 से, yes. अब 3 को डिवाइड करो 2 से, 3 को डिवाइड करिए 2 से, क्या आपको 0 मिलेगा रिमाइंडर, 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, क्लास 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड 3 by 2, 1. So 1 is equal 0, 1 is equal 0, नो, कंडीशन फॉल्स, सो सी प्लस प्लस नहीं होगा, यानी कि काउंटर की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, वापस आपका कंट्रोल ऊपर जाएगा. नाउ नेक्स्ट टाइम अगेन नम प्लस प्लस, तो न्यू वैल्यू ऑफ नम विल बी 4 नाउ, तो जब 4 के लिए चेक करोगे तो 4 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, क्या 4 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यस. तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस प्लस, तो काउंटर की वैल्यू अगर 1 थी तो कितनी हो गई है 2, यानी कि आई गॉट 2 इवन नंबर्स, one is 2, then second one is 4. In the same way it will check all the numbers from 1 to 10, 1 to 10 के सारे नंबर्स चेक करेगा, और जहाँ पर भी आपको इवन नंबर मिलेगा तो वो काउंट कर देगा और सी को कर देगा प्लस प्लस. सो दैट इज द यूज ऑफ योर काउंटर. So counters are mainly used to count something, to count the value. Fine. So no need to study this program, you can leave this part. Given in your book, leave this. Okay? Cut this program. Now moving on to the next topic, which is your accumulator. Okay? Now read out here, suppose we want to find out sum of 20 numbers. क्या find करना है, sum of 20 numbers, and those numbers can be anything, कोई भी 20 numbers हमें लेने हैं. So what will you do, क्या करोगे आप, will you declare 20 variables to store sum, क्या आप 20 वेरिएबल्स लोगे, जैसे कि a इज इक्वल टू समथिंग, देन b इज इक्वल टू, देन c इज इक्वल टू, इस तरीके से आपको टोटल 20 लेने पड़ेंगे, ठीक है. सो विल यू डू लाइक दिस, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इन दैट केस वी विल यूज व्हाट, एक्यूमुलेटर टू स्टोर द सम. यानी कि जब हमको कोई एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब जब हमें कोई कंबाइंड वैल्यू स्टोर करनी होती है ना, कंबाइंड वैल्यू यानी कि कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करना होता है, देन वी यूज एक्यूमुलेटर. गॉट माई पॉइंट. जैसे कि मुझे सम ऑफ 100 नंबर्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ऐसा वेरिएबल लूँगी जो क्या कर रहा है, सारे 100 जो मैंने नंबर्स लिए उन सबका सम स्टोर कर रहा है, ठीक है. तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं जो सम को स्टोर करते हैं या प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, दैट आर नोन एज योर एक्यूमुलेटर. फाइन. Then a variable which stores the sum or product of many numbers. The main focus is on many numbers. जब बहुत सारे numbers होते हैं उसके साथ जब आप कुछ task perform करते हो तो उनको बोलते हैं accumulator. For example, now suppose look at this program here to print the sum of first 20 natural numbers. First 20 natural numbers. Now firstly you should know what are natural numbers. So natural numbers कौन से होते हैं, natural numbers starts from 1, next natural number is 2, next is 3, up to how much 20. ये हो गए आपके स्टार्टिंग 20 नेचुरल नंबर्स. तो अगर आपको 20 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 + 2
+3 +4 +5 6 अप टू 20। इन पूरे नंबर्स का क्या निकालना है आपको? सम। तो ये बहुत सारे नंबर्स है ना, मल्टीपल नंबर्स हैं, तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज मैनी नंबर्स देन यू विल यूज accumulator. So the program starts with the IOStream with the conio.h header file. Then on the next page, okay, wait. Now is that visible? Okay. So we were discussing about accumulators. So accumulators are mainly used to store the sum or the product of many numbers. That is the main focus. Use of accumulator. So suppose I want to find out the sum of 20 natural numbers. So how I will make the program? I will start with the IOStream file, with the Conio file, and then on the next page, see, starting with the main, void main, then opening bracket, CLR SCR, up to here everything is same in the C++ programs. Now I want to find out the sum. तो अगर मुझे sum find out करना है तो इनिशियली जब तक मैंने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया sum के अंदर तो sum की वैल्यू कितनी होगी? 0, because up to now I have not calculated the sum, right? So int sum is equal to 0. Got it? Then for int I is equal to, अब देखो क्योंकि मैंने आपको कल वेडनेसडे में एक्सप्लेन किया था क्या कि अगर हमें कोई चीज़ बार बार परफॉर्म करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ लूप। लूप के अंदर वी आर हैविंग 3 एक्सप्रेशन, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मुझे 1 से लेकर कहाँ तक के नंबर्स पे जाना है? 20। तो लूप विल स्टार्ट फ्रॉम i इज इक्वल टू 1, कहाँ तक जाना है? 20 तक। दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 20। और जब नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 ऐसे मूव ऑन हो रहे हैं ना, यानी कि 1 1 का इंक्रीमेंट है, तो 1 1 का इंक्रीमेंट है तो i प्लस प्लस, राइट? देन सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है व्हेन द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 1, तो यहाँ से आपका यहाँ मूव ऑन करेगा कंट्रोल। 120 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, 1 इज लेस देन 20, यस यू विल कम इनसाइड, ट्रू के केस में। व्हेन यू विल कम इनसाइड, सो यू नोस द वैल्यू ऑफ सम इज इनिशियली 0, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू कितनी है? 0। आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 प्लस 1 कितना होगा बेटा? 1। यानी कि सम की अपडेटेड वैल्यू अभी तक 0 थी, अब कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। नाउ यू कैन कट दिस लाइन, इट इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज द एक्स्ट्रा लाइन यू कैन लीव। देन दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट, यू विल मूव बैक अगेन हेयर ऑन आई प्लस प्लस। नाउ आई की न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 2। नाउ अगेन चेक, यहाँ पे आएगा कंट्रोल। 2 क्या 20 से छोटा है? 2 इज लेस देन 20, यस। नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम की अपडेटेड वैल्यू कौन सी है? लास्ट वैल्यू 1। तो 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है? देखो आई की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 3। यानी कि मेरी न्यू वैल्यू सम की कितनी हो गई है? 3, यानी कि मेरा 1 और 2 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो 1 प्लस 2 मेरा अपडेटेड वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट टाइम अगेन यू विल मूव बैक, तो आई प्लस प्लस हुआ, फिर से कितना हो जाएगा? 3। क्या 3 छोटा है 20 से? यस ऑफ कोर्स, कम इन साइड अगेन। नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम की प्रीवियस वैल्यू क्या है? अब देखो अपडेटेड वैल्यू, देखो लास्ट में क्या लिखा है सम के? 3। तो 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 plus 3 will be 6. So in this way, your loop will run up to 20 times and your sum will get calculated like this: 0 plus 1 plus 2 plus 3 4 and so on up to 20. और जैसे आपके 20 नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सो यू विल कम आउट ऑफ द लूप एंड जैसे आप लूप से बाहर आओगे योर कंट्रोल विल कम एट दिस लाइन और आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे सम को। Now instead of writing this,
You can also write it in this way. आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी आउट सम. Got my point? At the last get ch and closing bracket. Clear हो गया? So this is the program to store the sum of 20 natural numbers. Remember one thing, that most of the students do what, they don't write like this. वो क्या लिखते हैं? Sum is equal to I. This is wrong. This is wrong. I की वैल्यू सम में ट्रांसफर नहीं करनी है. आपको क्या करना है, जो पुरानी वैल्यू सम की आ रही है उसी में नई वैल्यू आई की भी ऐड करनी है. जैसे सम की वैल्यू अगर प्रीवियस वैल्यू 0 है तो 0 में ही न्यू वैल्यू ऐड करनी है 1. अब सम इतना आ चुका है तो इसी में ही न्यू वैल्यू ऐड करनी है 2. नाउ दिस इज माई सम, इसी में ही ऐड करनी है न्यू वैल्यू 3, लाइक दिस. दैट्स वाई वी आर राइटिंग सम इक्वल टू सम प्लस आई. सम प्लस आई का मतलब प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम प्लस द न्यू वैल्यू ऑफ आई. So here, if somebody will ask you that which variable is the accumulator, तो accumulator इसमें कौन सा है? Sum. क्योंकि sum हमारा accumulator की तरह क्यों वर्क कर रहा है? अभी हमने definition में read out किया, देखो कि sum जो accumulators होते हैं which stores the sum or product of many numbers are known as your accumulator. So here your accumulator portion is over. Any doubt up to here? The next topic is your nested loop. अभी हमने क्या पढ़ा? We have studied about loops. ठीक है. Now nested means what? When a loop is inserted inside another loop, then it is called as nested loop. ठीक है. जैसे कि एक रूम के अंदर, किसी भी घर में क्या होता है, एक रूम के अंदर अगर फर्दर कोई एक स्टोर रूम होता है तो वो जो स्टोर रूम होगा वो आपका क्या होगा? एक मतलब नेस्टेड रूम होगा. यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी लूप के अंदर जब एक और लूप बना देते हैं अंदर उसके, तो दैट विल बिकम द, जो इनर वाला लूप होगा दैट इज कॉल्ड योर नेस्टेड लूप. गॉट माई पॉइंट? एग्जाम्पल जैसे आप रूम का याद रखना, आपका एक बेडरूम है, बेडरूम के अंदर भी एक स्टोर रूम होता है, तो वो जो स्टोर रूम होगा वो आपका एक नेस्टेड रूम होगा. ऐसे ही लूप के अंदर जब आप फर्दर लूप बनाते हो तो जो इनर लूप होता है दैट इज कॉल्ड योर नेस्टेड लूप. नाउ द जनरल फॉर्मेट ऑफ द लूप इज गिवन हियर. सपोज आई मेड हेयर फॉर लूप. हमने एक फॉर लूप बनाया है यहाँ पर. दिस इज दी ओपनिंग, क्लोजिंग, ये है एक फॉर लूप. अब इस फॉर लूप के अंदर अगर मैं एक और फॉर लूप बना दूं यहाँ पर, लाइक दिस. नाउ विच इज द नेस्टेड लूप? मैं आपसे पूछती हूँ ना, विच इज द नेस्टेड लूप? सो यू विल से दिस फॉर इज माई नेस्टेड लूप. जो इनर वाला होता है उसको नेस्टेड बोलते हैं. तो एक के अंदर सिर्फ एक नहीं हो सकता, उसके अंदर भी फर्दर हो सकते हैं. जैसे यहाँ मैं एक और फॉर बना सकती हूँ, लाइक दिस. Got it? Now this will also be considered as your nested loop. Clear? That is the only thing about the nested loop. No need to study anything else. Next point, the last topic, break statement. Now break statement is used to come out of the loop in between. जनरली हम लूप से बाहर कब आते हैं? जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है. जैसे हमने अभी प्रीवियस प्रोग्राम में पढ़ा कि i इज इक्वल टू 1 एंड i इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड i प्लस प्लस, ये पढ़ा था अभी हमने फॉर लूप में. तो जब हमारी कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी देन ओनली आई विल कम आउट ऑफ द लूप. बट समटाइम्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी होती है दैट आई वांट टू कम आउट ऑफ द लूप इन बिटवीन, कि बीच में से मुझे कुछ बाहर अगर आना है, लूप से बाहर आना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? ब्रेक का. तो ब्रेक जो है वो एक कीवर्ड होता है विच इज़ मेनली यूज टू कम आउट ऑफ द लूप. दैट्स इट. इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है. इसका कोई एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना बिकॉज दैट इज़ अ डिटेल्ड कंसेप्ट इन योर 9th and 10th क्लास. सो अप टू हेयर यू ओनली स्टडी अबाउट द डेफिनेशन पार्ट. So break statement is mainly used to come out of a loop, whether it is a for loop, while loop or do while. Done? Now quickly moving on to the exercise part. First we will discuss the question answers, or together we will move on. चलिए start marking. Why are loops used? Why are loops used? Page number 78. Open it. Page 78.
Look at here. The very first line, the loops are used to execute a set of statements a certain number of times. That's it. Mark it fast. Over. Next question. इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पैराग्राफ की से फर्स्ट लाइन, ओनली फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, दैट्स इट. Second question is, what do you mean by test condition? Page 86. What do you mean by test condition? Wait, 1 minute. Page number 86. Look at this part, words to remember. यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नहीं है, दिस इज टेस्ट. तो आपको हेडिंग नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है इट इज यूज्ड. It is used to check the value of the control variable against a given condition. This is the answer. Over. Next. Name different loops supported by C++. Page number 78 again. Look at here. Introduction में last line, the different loops supported by C++ are for, while, do while, up to here. Over. Next question. Why do we use for loop? Why do we use for loop? 86 page number. 86, point number 2 was to remember, it is used. Right from here, it is used to execute the set of statements a fixed number of times. Done. Next question. Next, fill in the blanks. Mark it 3142. Mark it 3142. Fill in the blanks. Over. Next. MCQ. I'm going to directly dictate the answers. Any problem, make it clear, please. First C answer, second B, third B, fourth A. Complete. You can take the screenshot also. If you are not having the book, take the screenshot for it. Next question, very short. What is the keyword of for statement? Write the answer. Write the answer for in small letters. For keyword. Next question. This is the answer for keyword written here on the screen. Very short. Next question. What is a control variable? 79. Page number 79. Control variable. Mark the initialization paragraph complete for control variable. Initialization का full paragraph. Next question. Short answers. What is the general format of for loop? General format of for loop. Format आप देखिए पेज नंबर 78. Only this part. This is the answer. Over.
फॉर लूप ऑलरेडी ओपन ऑन द स्क्रीन। फॉर लूप का सिर्फ सिंटेक्स लिखना है आपको। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटर्स एंड accumulators. Now this part I will tell you later on because it is not given in your book. Counters and accumulators के लिए I have to give the examples. ठीक है, so leave this part. Before that, do long answer. Calculate the cube of the number entered by user 20 times. क्यूब निकालना है नंबर का entered by the user 20 times. ठीक है, long answers. First question, you can take the screenshot for it. No need to write right now. Take the screenshot, later on you complete it. Let me explain it here. क्वेश्चन है क्यूब निकालना है नंबर्स का 20 टाइम्स, यानी कि 20 टाइम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लेने हैं और उनका क्यूब निकालना है। जैसे एक बार मैंने लिया 3, एक बार मैंने लिया 6, एक बार मैंने लिया 15, तो हर बार आपको न्यू न्यू नंबर्स एंटर कराने हैं 20 टाइम्स और उनका क्यूब कैलकुलेट करना है। सो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, कोनियो, वॉइड मेन, ओपनिंग ब्रैकेट, CLR SCR, एवरीथिंग इज सेम। उसके बाद में नंबर इनपुट कराने के लिए आई हैव टेकन हियर नम, और क्यूब को स्टोर कराने के लिए टेकिंग C। कितने नंबर्स इनपुट कराने हैं? 20 नंबर्स। सो आई एम स्टार्टिंग अ लूप फॉर इंट I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि 20 टाइम्स करना है एंड I विल गेट प्लस प्लस। ओके, नाउ वी हैव टू एंटर द नंबर, और नंबर एंटर कराने के लिए हम यूज करते हैं C in का। सो हमने यहाँ पे लिखा है C out, एंटर द नंबर। तो स्क्रीन जो होगी आपका, उस पर क्या लिखा हुआ है मैसेज, एंटर द नंबर। तो आपने नंबर दिया सपोज 3, तो 3 किसके अंदर चला जाएगा, नम के अंदर। अब आपको अगर क्यूब कैलकुलेट करना है तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम क्या लिखेंगे, नम इंटू नम इंटू नम, और जो भी आंसर आएगा वो उसको किस में स्टोर कर दोगे, सी के अंदर। और जब सी के अंदर आंसर आ गया तो आप उसको कर दीजिए प्रिंट, लाइक सी आउट \n होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि हमें हर बार जब भी हम क्यूब प्रिंट करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में आके प्रिंट करेंगे, है ना, तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, \n। क्यूब ऑफ अ नंबर इज C। और जब क्यूब प्रिंट हो जाए तो हमें दोबारा से नेक्स्ट लाइन में आना है, इसलिए इसी के आगे देखो मैंने लिखा है, इसी के आगे देखिए ये और \n। \n का मतलब जब क्यूब प्रिंट हो जाए तो मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है, ताकि नेक्स्ट जो मैसेज आएगा वो न्यू लाइन में आए। तो ये था आपका क्यूब ऑफ द नंबर के लिए। लूप चलाओगे 20 टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 टाइम रिपीट करना है, और क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नम इंटू नम इंटू नम। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द फर्स्ट पार्ट। And write same as it is, as I have taken here, like comma, semicolon, dot, whatever it is, same as it is you have to write, capital, small letters. Then second question है आपका, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको पावर निकालना है, ठीक है, पावर निकालना है आपको, जैसे कि 2 की पावर 3 निकालना है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 8, ये हो गई पावर। तो मुझे a की पावर b अगर निकालनी है तो वो क्या होगा, a की पावर b अगर मुझे निकालनी है तो आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ a, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ b। तो अगर a और b की वैल्यू इनपुट करानी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, c इन a एंड c इन a की पावर p निकालनी है तो c इन p। a आपका क्या है, a इज योर बेस, p इज योर पावर, तो a का मतलब क्या हो गया 2, पावर का मतलब क्या हो गया 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो आपको ये करना है, इसमें पावर निकालनी है, बेस की पावर। तो देखो बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है, यहाँ तक सेम।
उसके बाद में हमने क्या लिया, वेरिएबल्स लिए हैं। देखो वेरिएबल्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखते रहते हैं, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे वैसे वैसे आप उसको ऐड ऑन करते रहते हो। अब मुझे क्या करना है, बेस एंटर कराना है। बेस मतलब किसकी पावर निकालनी है, कौन से नंबर की निकालनी है, ए की निकालनी है। तो सी आउट एंटर द बेस और सी इन ए, तो ए इज योर बेस। नाउ सी आउट एंटर पावर, पावर किस में जा रही है, पी के अंदर, यानी कि मुझे निकालना क्या है, ए की पावर पी। ठीक है, तो A is your base, P is your power. तो A I have taken here, P I have taken here. Now next thing is पावर जब हमें निकालनी है तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही होगा। तो हमने क्या करना है, एक लूप स्टार्ट करना है जो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, पावर तक। कितना टाइम्स, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जितनी पावर की वैल्यू होगी। तो 1 से लेकर p तक का एक लूप चलाओगे, i प्लस प्लस करोगे, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, रेस इज इक्वल टू रेस इंटू ए। ए क्या है आपका, ए इज 2, यानी कि रेस की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 1। जीरो क्यों नहीं लिया, जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीरो की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट जीरो इट सेल्फ। सो दैट्स द रीजन आई हैव टेकन हियर रेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 इज लेस देन इक्वल टू p, p की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। रेस की वैल्यू कितनी ली है मैंने, 1। रेस क्या है, रिजल्ट, रेस इज यूज्ड फॉर रिजल्ट। तो रेस इज इक्वल टू रेस इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, p की वैल्यू कितनी ली है 3। अब मुझे ये बताइए रेस इज इक्वल टू, जब रेस इंटू ए करूँगी तो क्या आएगा, 1 इंटू 2, कितना आ गया रेस की वैल्यू 2। जब i प्लस प्लस होगा दोबारा से तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, सो रेस इज इक्वल टू रेस इंटू ए। तो रेस की वैल्यू क्या है अब 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। फिर से i प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया 3। तो चेक करो क्या 3 लेस देन और इक्वल है 3 के, यस। तो वापस से रेस इंटू ए, रेस की वैल्यू है 4, 4 इंटू ए कर दो, ये 4 इंटू 2 आ गया 8। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 8, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो आपका रेस की वैल्यू आ गई 8। उसके बाद जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद में आपको करना है प्रिंट, और प्रिंट कराने के लिए लॉजिक विल बी सी आउट। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश एन, रिजल्ट इज इक्वल टू रेस, at last get ch, closing of the bracket, fine. So we have covered 2 programs, still we are left with some more programs. So on next, not on Wednesday, before that whenever I will get the time, or Sunday itself I will upload a video on the YouTube for the remaining question answers on Sunday, or today itself I will get, then tomorrow I will upload it, okay, for the remaining question answers. Just wait, hold on. So these 2 parts we have done, but still this portion is left, सी डी ई एफ। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी, और ये असेसमेंट सी, यहाँ तक आपको सब कुछ कॉपी में करना है, एवरीथिंग राइट इट इन द कॉपी, ठीक है। सो फॉर रिमेनिंग आंसर्स आई विल अपलोड द वीडियो, एंड फॉर दिस सेकेंड वन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट नाउ, टेक इट। मैं जा रही हूँ बस, अब हो गई, मेरी मेरी हो गई क्लास, में जा रही हूँ। टेक द स्क्रीन शॉट, नेक्स्ट पेज, डन। This part also, take this part, B, taken, okay. Now wait for a minute, okay, let me take the attendance, don't leave. Okay, okay, Ritvik, I will mark, wait.
मैम इधर बैठना है क्या? Okay, you can leave now. Okay. जी सर, मतलब इधर बैठेंगे क्या आप? मैं सर उधर कोई क्लास ही खाली नहीं है इसलिए आके बैठी थी इधर। तो ऐसा मेरी कर क्लास लीजिए, भी चल मेरे रही थी ख्याल ना। में आमने सामने बैठ लीजिए। उसका रीजन ये है कि बच्चे को